Yes, I have started recording. So let me explain once again. Purchase return, purchase is debit balance, purchase return account is having credit balance. Now credit balance wala account is overcasted, then do the reverse. क्रेडिट को डेबिट करना होगा. इफ क्रेडिट अकाउंट ओवरकास्ट हुआ है, ज़्यादा क्रेडिट कर दिया है, नाउ यू नीड टू डेबिट इट यूजिंग द सस्पेंस अकाउंट. तो व्हाट शुड बी अवर जर्नल एंट्री? Look here, when there is undercasting or overcasting, you just need to, you know, focus only on that part, only on the debit or credit part. Use the suspense account. So here you are able to see, in case of casting error, there is no correct error, there is no wrong error. Okay, डायरेक्टली यू कैन पास रेक्टिफिकेशन एंट्री. ये बहुत ही स्कोरिंग होता है अंडर कास्टिंग या ओवर कास्टिंग. सो परचेस रिटर्न अकाउंट विच वॉज हैविंग क्रेडिट बैलेंस वो ओवरकास्ट कर दिया है, तो अब वो क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे. ओके, सो आवर रेक्टिफिकेशन इज परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके, अगर क्वेश्चन में ऐसा होता कि परचेस रिटर्न अकाउंट इज अंडर कास्टेड, सो इफ इट इज अंडर कास्टिंग then we will follow which sign? Same sign. For undercasting we follow the same sign. Let me try to open this with my software annotator so that you know uh, I will be able to write something or explain you in a better way. अनन्या, ये आपने क्या किया? Okay, now yes, let me try to open this image file. If it is possible, then it would be good. चलिए ट्राई करते हैं. This was our file. यस, हाँ बात बन गई. ओके, ओपन हो गया है. तो नाउ, हेलो, yes or no, are you able to hear me? I'm talking and I'm explaining the question. So we can also open this with this software file. Open, I want to open this question as well as ओके. अंशी आस्किंग, स्क्रीन पर ब्लू लाइन आ रही है. यस, ये अनन्या ने शरारत की है. ओके, हाँ मे बी बाय मिस्टेक हो गया होगा. इट्स ओके. सो ब्लू लाइन पर फोकस मत करो. ओके, उसके पीछे जो दिख रहा है उस पर फोकस करो. आर यू क्लियर? चलिए, सो नाउ हियर वी गो. फुल स्क्रीन करते हैं. Okay, so first situation, I feel it is clear to everyone what you are supposed to do. Now, uh, let's move on to the second one. So second question or second situation is a sale of goods to Priyanka of rupees 2000 was wrongly credited to her account as 200. Now, sale of goods to Priyanka of 2000. So, correct entry you can easily guess. What should be the correct entry? Priyanka to sales. Priyanka को 2000 का माल बेचा है. Priyanka to sales is the correct entry. Now,
what mistake is done, was wrongly credited to her account as 200. By mistake we have credited to Priyanka as 200. So look here, I feel you are able to see this red hand. Okay, so you have credited Priyanka with 200. The question is silent about sales. तो what do we assume कि sales तो बराबर ही होगा. तो सेल्स 2000 बराबर है ऐसा अज्यूम करेंगे. प्रियंका को डेबिट 2000 करने की जगह पर क्रेडिट 200 कर दिया है एज पर गिवन इन द क्वेश्चन. And when you have done something wrong, then to complete this journal entry we need to take the help of suspense account. So this is our wrong entry. Suspense debit 2200 to Priyanka, 200 to sales. What pattern we follow? Wrong entry needs to be reversed. डेबिट का क्रेडिट करके रिवर्स एंट्री हम करते हैं फ्रॉम द wrong entry. Then we compare reverse and the correct entry to get the rectification entry. And if debit credit with same account is there, then we can cancel this because debit credit are like plus and minus. So here we can see sales credit and sales debit will get cancelled. So ultimately whatever is remaining from reverse and correct entry will give you rectification entry. So Priyanka 200 debit है, Priyanka यहाँ पर 2000 debit है, तो Priyanka debit होगी 2200. Okay, and here suspense is credit 2200. So I hope you are clear about this. Yes or no? How is the Josh? Okay, so please write something so that I can understand that you are able to understand. Okay, good. So Ansh is high in Josh, Kalp is also having high Josh, including Arnav. Okay, बाकी का जो जोश कम है, मनमित is also high on energy. So energy देखो, अब सीखना तो है कैसा भी हो, but हंस कर सीखना है. ओके, लाइफ विल गिव यू द चैलेंजेस, हमें उसको इजी एंड इंजॉइंग बनाना पड़ता है. तो थर्ड वन, चलिए अब आपसे पूछता हूँ अर्णव, कैन यू प्लीज रीड दिस थर्ड वन. हेलो. ओके कल्प, कैन यू प्लीज रीड दिस थर्ड वन. यस सर. बोलो. Purchase of goods of rupees 3000 from Isha was wrongly debited to her as 30,000. Okay, so look here. Purchase of goods of 3000 from Isha. So purchase to Isha 3000 ये एंट्री होनी चाहिए थी. ये देखो परचेज टू ईसा 3000 एंट्री होनी चाहिए थी. नाउ व्हाट इज द मिस्टेक? wrongly debited to ईशा अकाउंट एज 30,000. ईशा को डेबिट कर दिया 30,000 बाय मिस्टेक. ओके, क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट परचेज, तो वी अज्यूम दैट परचेज तो बराबर से डेबिट हुआ होगा 3000. So to complete this journal entry, we take the help of suspense account. It is exactly similar to situation number 2. Do the reversal of this wrong entry and now you can compare. Purchase will get cancelled, debit and credit. And now you can see suspense debit हो रहा है 3300 and ईशा दो बार क्रेडिट हो रही है. इफ वी ऐड देन ईशा को क्रेडिट करना है 33,000. ओके, यहाँ पर एक एरर है, 10 शुड ऑल्सो बी देयर, सो इट इज 33,000. सो सस्पेंस 33,000 टू ईशा 33,000. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ओके, यस कल्प, फोर्थ वन. Yes sir. Wages paid for repair of machine was debited to machinery account ओके. rupees 1,000. Okay, so wages paid for repair of machinery. When we pay for repair of machinery, it is actually revenue expense. Revenue means asset में debit नहीं करना है. It is not the installation, it is the repair. So it should be debited to repair account. So your correct entry should be repair to cash. You have paid 1000 for repairs, but by mistake you have debited machinery. You have passed the entry machine to cash. Then सीधी बात है, इसको तो हम डायरेक्टली समझ सकते हैं. मशीन डेबिट किया है, करना नहीं था, तो अब मशीन को क्रेडिट कर दो. एंड रिपेयर्स डेबिट करना था बट नहीं किया है, तो अब डेबिट कर दो.
So we get rectification entry, repairs account debit to machinery. So I hope this one was easy. Okay, let's move on to the fifth one. Yes, Kalp. Discount allowed to Mr. Ramesh was omitted to be recorded as rupees 500. Okay, so when there is error of omission, we are lucky. Nothing is recorded in the accounts. It means we need to now record. So when we are allowing discount to Ramesh, so this is our expense. Discount को debit करोगे, रमेश को credit करोगे 500. So as you can see here, the correct entry itself is the rectification entry. Discount allowed, खर्चा debit to Ramesh. ओके रमेश को डिस्काउंट देना है, रमेश की डेबिट बैलेंस कम करनी है, हेंस वी विल क्रेडिट द रमेश अकाउंट. Let's move on to the next one. Yes, sixth one. Bills receivable dishonored is omitted from books rupees 2000. So bills receivable is dishonored. Now first of all, whenever bills receivable is getting dishonored, हम किसके अकाउंट को डेबिट करेंगे? डेटर के अकाउंट को. Okay, and whether bill is honored or dishonored, bills has to be cancelled. Bills receivable is asset, जो डेबिट है उसको कैंसिल करना है, तो what should we do? We should credit it. So look here, डेटर को पकड़ेंगे जब बिल डिसऑनर्ड होगा, एंड अब वो बिल की कोई वैल्यू नहीं है, बिल्स रिसीवेबल जो एसेट करके ऑलरेडी बुक्स में होगा उसको हटा देना है. तो वेन एवर बिल्स रिसीवेबल इज गेटिंग डिसऑनर्ड, डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. ओके, आई होप यू आर क्लियर. एक मिनट, कैन यू रिपीट? सर डेटर टू बैंक भी हो सकता है डिसऑनर वाली एंट्री में तो. लेकिन ऐसा थोड़ी बोला है कि वो डिस्काउंट करवाया हुआ है. यू गॉट दिस पॉइंट? अगर ऐसा बोला नहीं है कि बिल वॉज डिस्काउंटेड, तो वी कैन नॉट अज्यूम कि वो डिस्काउंटेड होगा. अब क्लियर? सर ऐसा ही टाइप का सर इलस्ट्रेशंस में था, उसमें टू बैंक किया था. नहीं होगा, वो चेक करो. इन दैट केस दे मस्ट हैव गिवन द सिचुएशन दैट कि इट वाज अर्लियर डिस्काउंटेड. यू गॉट दिस पॉइंट? देखो, अगर डिस्काउंटेड नहीं हुआ है तो ये बिल तो अपने पास ही है. ओके, सो वो जो आप कर रहे हो ना, वो हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का. देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. बट यहाँ पर वॉट एवर यू से इज करेक्ट, लेकिन वो कब करना है? जब बिल डिस्काउंटेड हो. इट मीन्स बिल इज नॉट विथ अस, बिल को ऑलरेडी हमने क्रेडिट कर दिया है, सो अगेन वो क्रेडिट नहीं कर सकते. ओके, तो बैंक को पैसे देने पड़ेंगे. सो आई फील नाउ डाउट इज क्लियर. Okay, so in 6.1, suppose if they give some noting charges, तो what do we do? Noting charges अगर 200 है तो डेटर डेबिट होगा 2200 एंड बिल्स रिसीवेबल ये क्रेडिट तो उतना ही होगा 2000 का. बट योर व्हाट यू विल डू अबाउट 200? सो ये 200 हमारी जेब से जाएंगे, नोटिंग चार्जेस. ओके, सो विल रिवाइज सेट चैप्टर. Then we have seventh one. Okay, please read seventh one. Purchase book was undercasted by rupees 500. Yes, it's very easy. Purchase is having debit balance. Undercast means कम डेबिट किया है तो फिर से डेबिट कर दो. तो what should be our entry? Purchase debit to suspense. ये देखो, purchase debit to suspense. Undercast means do the same. It means डेबिट अकाउंट को फिर से डेबिट करो, क्रेडिट अकाउंट को फिर से क्रेडिट करो if it is undercasting. So till entry number 7, I hope you all are clear. If you have doubt, then you can let me know. Then eighth one. Purchase of rupees 2000 from Mahesh was recorded in sales book as rupees 20,000. Now here, please note, is recorded in sales book. This is very important. पूरी की पूरी book ही change कर दी है. Okay, so in purchase book, our journal entry is purchase to creditor. यानी एंट्री होनी चाहिए थी परचेज टू महेश.
but recorded in the sales book. So in sales book, our journal entry for recording credit sales is credit creditor, sorry, debtor account debit to sales. So we have done reverse thing. Entry should have been purchase to महेश, लेकिन हमने महेश बेचारे को डेबिट कर दिया. ओके, सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो महेश टू सेल्स एंट्री पास कर दी. सो लुक हियर, एंट्री होनी चाहिए थी परचेज टू महेश परचेज बुक में, बट वी हैव एक्चुअली डन मिस्टेक बाय रिकॉर्डिंग इन द सेल्स बुक. सेल्स बुक में एंट्री होती है पार्टी टू सेल्स और डेटर टू सेल्स, तो महेश टू सेल्स एंट्री पास हो गई. एंड अगेन देर इज ए मिस्टेक इन अमाउंट ऑल्सो. 2000 की जगह पर शायद 20,000 हो गया है. यस, सो नॉट एन इश्यू, मिस्टेक तो होती है सबसे. So when you are clear with the wrong entry and the correct entry, you can easily pass rectification entry. इसको reverse कर दो, sales to महेश. Now compare करो. When we compare, then महेश 2 बार क्रेडिट हो रहा है, 20 and 2. ये क्रेडिट को कैंसिल नहीं कर सकते, उसको ऐड करना होगा. सो महेश क्रेडिट होगा 22,000, सेल्स डेबिट है, सेल्स को कैंसिल करना है इसलिए डेबिट करेंगे, परचेज को रिकॉर्ड करना है इसलिए डेबिट करेंगे. सो दिस इज अवर रेक्टिफिकेशन एंट्री. So this was also important. So I hope you are able to recollect different types of varieties of journal entries which we had done in this chapter. And ninth one. Cash sales of rupees 1000 was recorded as rupees 1200 in sales account. Okay, when it is cash sales, entry should be cash account debit to sales. But here प्लीज नोट, देखो रेक्टिफिकेशन में आपका माइंड एकदम रेजर शार्प होना चाहिए. नाउ ऊपर और नीचे वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है, सोच कर बताओ. ऊपर था सेल्स बुक, पूरी की पूरी बुक में, इट मीन्स पूरी जर्नल एंट्री ही आपने अलग पास की है. बट हियर देयर इज एरर ऑफ पोस्टिंग, सिर्फ पोस्टिंग सेल्स अकाउंट में आपने गलत लिखा है. ओके, सो हियर देयर इज एरर इन पोस्टिंग. सो होना चाहिए था कैश टू सेल्स 1000, बट इट वॉज रिकॉर्डेड एज 1200 इन सेल्स अकाउंट. सो कैश टू सेल्स 1000 होना चाहिए था, बट सेल्स अकाउंट में 1200 लिख दिया है. दिस मच इज गिवन. सो नाउ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट कैश, तो व्हाट डू वी अज्यूम, यहाँ पर सिर्फ लेजर में मिस्टेक है, सेल्स के अकाउंट में मिस्टेक है. सो वी नीड टू अज्यूम दैट के कैश अकाउंट तो करेक्ट ही होगा. सो नाउ डिफरेंस विल गेट क्रिएटेड विच विल बी ट्रांसफर टू द सस्पेंस अकाउंट. ओके, सो हियर देयर इज एन एरर इन सेल्स अकाउंट. I hope you are clear. Now reverse this entry and compare these two entries, and when you compare, then sales 1000 and here sales debit was 1200, so 1000 credit and 1000 debit cancel हो सकता है, तो sales में 200 debit will remain. Okay, cash account was correct, तो debit credit cancel हो जाएगा, and we get the rectification entry as sales account debit to suspense account. Okay, let's move on to the final one, 10th one. Yes, Kalp. Purchase from Ram of rupees 500 was wrongly credited to Sham account as rupees 800. Okay, so look here. Here again they are talking about account. It means it is an error of posting. So purchase from Ram of 500, तो purchase to Ram 500 होना चाहिए था, बट उसकी जगह पर श्याम को क्रेडिट कर दिया है. ओके, तो परचेज टू राम 500 होना चाहिए था, बट श्याम को क्रेडिट कर दिया है राम की जगह पर, प्लस 800 से क्रेडिट कर दिया है. सो क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट परचेज अकाउंट, सो वी अज्यूम दैट परचेज अकाउंट तो बराबर ही होगा. So again difference will get created, it will be transferred to the suspense account. Then we do reverse of this entry, and then ultimately on comparison, since purchase account was correct, debit credit will get cancelled, and we get rectification entry as Shyam ka account debit 800
to Ram ka account 500 and to suspense account 300. So I hope you are able to understand this question properly. Yes or no? Yes, sir. Okay. So now I wish to revise about a very small chapter, which is bills of exchange. Now, here I am writing, let's say, drawer, who is the creditor, and in the books of Drovey, who is the debtor. Now, first of all, there might be the transaction of परचेस और सेल, उसकी एंट्री आपको सबको पता है, तो आई एम नॉट राइटिंग दिस एंट्री. देन क्या हो सकता है कि बिल इज एक्सेप्टेड. व्हेन बिल इज गेटिंग एक्सेप्टेड, नाम दे देते हैं. लेट्स से ड्रोवर का नाम ए है एंड ड्रोवी का नाम बी है. सो ए के पास बिल आ रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट एंड credit the giver. Who is the giver? B is the giver. And in case of Drovey, B के लिए debit the receiver. Who is the receiver? A is the receiver. तो A का अकाउंट वो डेबिट करेगा. And two bills payable. It means liability is getting created. Now, अब ये 3 में there might be different situations. Okay, so 3A is held till maturity. Held till maturity means drawer will keep the bill with itself. तो कोई स्पेशल एंट्री की जरूरत नहीं है. ओके, ड्रोवर कुछ भी करे विद द बिल, ड्रोव इज नॉट कंसर्न. व्हाट इज अनदर सिचुएशन? अगर बिल अपने पास नहीं रखना है तो ड्रोवर कैन डू व्हाट? डिस्काउंट करवा दे. Yes, so another situation which is possible that depending on the question, के drawer may go to the bank for discounting. Now discounting is nothing but receiving the money in advance. Okay, तो पैसे जल्दी मिलते हैं तो बैंक थोड़े कम पैसे देगा. So it's sort of income for the bank. So second situation is discounting of bill. तो when bill is discounted, ड्रोवर को बैंक से पैसे जल्दी मिल जाएंगे बट थोड़े कम पैसे मिलेंगे. सो डिस्काउंटिंग चार्जेस भी डेबिट होगा एंड बिल इज गोइंग आउट ऑफ पॉकेट ऑफ ड्रोवर. सो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. ड्रोव इज नॉट कंसर्न. ड्रोवर बिल के साथ क्या करे? ड्रोव इज नॉट कंसर्न. अपने बुक में सिर्फ अपनी एंट्री हम पास करते हैं. ओके, नाउ what could be the other situation? Situation number C. Can somebody tell? वो किसी को एंडोर्स कर दे. Yes, endorsement is possible. Now what is endorsement? ये बिल जो है वो A ने किसी और के नाम कर दिया. लेट्स से वो पर्सन C है. ओके, तो C का अकाउंट डेबिट. C कौन है? एंडोर्सी है. एंडोर्सी कौन होता है? जो ड्रोवर है, ड्रोवर क्रेडिटर होता है, उसका भी क्रेडिटर. ओके, तो हो सकता है कि वो सी को बिल दे दे. सी का अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. सो इन दिस सिचुएशन ऑल्सो बिल इज गोइंग आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ दिस. अगेन नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रोवी. ड्रोवी इज नॉट कंसर्न. ओके, बिकॉज ये ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रोवर. नाउ अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? दो बातें हो सकती है. आपके नसीब अगर अच्छे हैं तो बिल कैन बी ऑनर्ड. सो हियर आई एम राइटिंग बिल इज ऑनर्ड. ऑनर्ड का मतलब है पैसे मिल गए हैं. सिचुएशन नंबर ए, जब बिल हेल्ड हुआ था टिल मैच्योरिटी, ड्रोवर के पास ही बिल था तो पैसे मिलेंगे.
तो क्या एंट्री पास करेगा ड्रोवर? कैश स्लैश बैंक टू BR। यस, BR जाएगा क्योंकि BR इन दैट केस उसके पास था। ओके, जस्ट ए मिनट। Hello. Okay. Now, situation number B was what? Discounting. If the bill was discounted and if it is honored, तो ड्रोवर कुछ भी एंट्री पास नहीं करेगा। Why? क्योंकि ये तो ड्रोवी और बैंक के बीच का मामला है। Yes or no? So, अब उसको कोई टेंशन नहीं है, बिल तो ऑलरेडी चला गया था, बैंक ने कलेक्ट कर लिए हैं ड्रोवी के पास। सो उन दोनों का मैटर है, तो ड्रोवर को एंट्री पास नहीं करेगा। एंड थर्ड सिचुएशन वाज व्हाट? एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट उसकी तरह ही है, एक्चुअली डिस्काउंटिंग की तरह ही है। एंडोर्समेंट में अपने क्रेडिटर को बिल देते हैं एंड इन केस ऑफ डिस्काउंटिंग बैंक को बिल देते हैं। तो हियर ऑल्सो मैटर इज बिटवीन एंडोर्सी। सी ने कलेक्ट कर लिए होंगे फ्रॉम आवर डेटर हु इज बी, तो कोई एंट्री पास नहीं करेगा ड्रोवर। लेकिन इन तीनों के केस में एक एंट्री इसके बुक में तो फिक्स है, विच इज दैट एंट्री? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लायबिलिटी है ना, वो कम हो रही है, तो बिल्स पेएबल डेबिट कर दो एंड उसके पास से पैसे जा रहे हैं बिकॉज ही इज पेइंग। So I hope you are able to understand the situation properly. Yes or no? Hello. Yes, sir. Okay. So देखो अकाउंटेंसी इज वेरी इजी। शायद हमने स्टार्टिंग में क्या है कि स्टडी किया होगा, तो यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट एंड इट्स वेरी इजी। अभी भी आप सुनोगे तो इट्स वेरी इजी। लायबिलिटी कैंसिल हो जाएगी एंड कैश चला जाएगा। नाउ व्हाट इज अनदर सिचुएशन विच इज पॉसिबल? अगर नसीब अच्छे नहीं है तो क्या होगा? डिसऑनर्ड होगा। और डिसऑनर्ड में एक स्पेशल अकाउंट होता है, वो होता है नोटिंग चार्जेस। व्हाट इज नोटिंग चार्जेस? वकील को कुछ पैसे देने पड़ते हैं, उसकी बुक में वो रिकॉर्ड करता है। तो कोर्ट में जाने से पहले डिसऑनर के लिए जिसके पास बिल होगा वो पे करेगा वकील को नोटिंग चार्जेस। तो पहला था हेल्ड टिल मैच्योरिटी। सो ड्रोवर के पास अगर बिल है डिसऑनर्ड हो गया तो रूल नंबर 1 वो किसको पकड़ेगा? ड्रोवी को पकड़ेगा। ओके, सो बी को डेबिट कर देगा, लेकिन बी को डेबिट करेगा विथ नोटिंग चार्जेस। एनसी का मतलब है विथ नोटिंग चार्जेस। ओके, और उसके पास से क्या जा रहा है? बिल जा रहा है, लेकिन उसके साथ कैश भी जा रहा है। कैश क्यों जा रहा है? नोटिंग चार्जेस की वजह से। ओके, सो जब बिल ड्रोवर के पास है, सो इफ इट इज डिसऑनर्ड, सो अवर ड्रोवी को फिर से हम डेबिट कर देंगे। पहले उसे क्रेडिट किया था बिल के भरोसे, अब तो ये रिवर्स करना पड़ेगा। तो ड्रोवी का अकाउंट डेबिट टू बीआर ये एंट्री होती है, बट ड्रोवर मस्ट हैव पेड नोटिंग चार्जेस बाय कैश। तो उतना पैसा हम वसूल करेंगे ड्रोवी से, बिकॉज ड्रोवी इज रिस्पॉन्सिबल। अल्टीमेटली ड्रोवी के लिए ये एप्लीकेबल है, ड्रोवी की वजह से ये खर्चे हुए हैं। नेक्स्ट सेकंड सिचुएशन वो डिस्काउंटिंग विद द बैंक। अगर बिल डिस्काउंट करवा दिया था और अब डिसऑनर्ड हो गया है, तो क्या होगा? हम पीछे पड़ेंगे ड्रोवी से एंड बैंक जो है वो हमारे पीछे पड़ेगी, यानी बैंक हमारे विड्रोवल साइड से पैसे निकाल लेगी। इफ बिल वॉज डिस्काउंटेड, already we were having the account with the bank, so bank will recover money from us. So I hope this one is clear to you. Yes or no? And third situation, which was the third situation?
एंडोर्समेंट, बिल को एंडोर्स किया गया था। ओके, तो अगेन बी को तो हम डेबिट करेंगे विथ नोटिंग चार्जेस, बट इन दिस केस बैंक की जगह पर हम किसका नाम लिख देंगे? C. यस, सी का नाम। ओके, क्योंकि सी ने नोटिंग चार्जेस पे किए होंगे, तो हम बी को डेबिट कर देंगे एंड सी, यानी बी से लेकर सी को देने हैं। दिस इज द सिचुएशन। ओके, सी हमारे पीछे पड़ेगा, यानी सी हमारा क्रेडिटर बनेगा, हम बी के पीछे बढ़ेंगे, बी हमारा डेटर बनेगा। ओके, इन ऑल दिस थ्री सिचुएशन उसके बुक में एंट्री सेम होती है। क्या होती है? वेदर इट इज ऑनर्ड और डिसऑनर्ड, बिल तो कैंसिल करना है, एंड नोटिंग चार्जेस ड्रोवी का खर्चा है। ओके, और उसके लिए फिर से कौन क्रेडिटर बन जाएगा? ए। A. So I hope you are able to understand all these situations properly. So basically, bills of exchange is a part of journal entry. ये journal entry है, लेकिन क्योंकि special type की entries है, bill के transactions है, इसलिए separate chapters बना दिया. But basically it is just a journal entry. So I hope you are able to get some good thing. In next session, remind me, I will explain you about रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल में कुछ होता नहीं है, पुराना बिल कैंसिल करते हैं, कुछ पार्ट पेमेंट होता है, अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट होता है, एंड देन अल्टीमेटली वी गेट द फाइनल अमाउंट ऑफ द न्यू बिल। Okay, so renewal will be discussed in the next session. So wish you all the best. Bye bye. You can mark your attendance in the group.